जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो चलो ट्यूशन करी की तरफ से हम लोग जो हर साल एक्सटेम्पो स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमने इस साल भी ऑर्गेनाइज किया। दिस वाज द 4th सीजन ऑफ द एक्सटेम्पो स्पीच कंपटीशन। मगर इस बार बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमने इसे ऑनलाइन किया ताकि मतलब हम जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो हाँ द्विका, प्लीज स्टार्ट। A very good afternoon to respected Judge Vijay Dubey sir and my dear friends. Myself Advika Shah, I'm a student of Chalo Tuition Kare, currently reading class 10, and today my topic is the emergency in India. वक्त ने किया क्या हंसी सितारे, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम. This was a song All India Radio played seconds after announcing the shocking defeat of Indira Gandhi and her son Sanjay Gandhi in the general election of 1977. Someone in Wonderful. In fact, you know, it was so crisp, and though this is something that we all are aware of, but listening to you, it did not feel like I'm listening to something which I probably have known for some time. It felt fresh and it felt really, really good. I mean, I think the way you have said it, your perspective was pretty apparent from there. Good morning, ma'am, Vijay sir, and my dear friend. My name is Sandeep, and today I am going to present a speech on the topic good food and bad food. Healthy food is good food. It has all the essential nutrients and elements that the body requires to stay healthy and function optimally. Scientific research has confirmed any lack of essential nutrients may lead to poor functioning of body system and ailment may affect the body. Respected ma'am, Vijay sir, and everybody present here. My name is Mahi Sharma, and today I am going to talk about the danger of drugs in society. I want to ask you all to imagine the atmosphere of Republic Day. You and your family are driving down the road. You take a look outside your window and you see the people's faces beaming with nation pride. And then you notice a miniature flag attached to their vehicles. Now, have you ever thought that that might be illegal? Plastic pollution is affecting the whole earth, including mankind, wildlife, and aquatic life. Good morning, judges and my dear friends and participants. My name is Aryan and my topic is sports as a career. My name is Sheetal and thank you for having me. My topic is history of Indian cinema. Cinema can fill empty space in our life and loneliness. So let's begin. तो 1896 में ल्यूमेरे ब्रदर्स इंडिया के वाटसन होटल में आए और उन्होंने पहले अपनी शॉर्ट फिल्म डिस्प्ले की। उसके बाद 1898 में हर्षवर्धन जो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए ल्यूमेरे ब्रदर प्रोडक्शन से कि उन्होंने present here. Today I am going to speak about digital literacy. In today's world, it is a requirement to be digitally literate in order to be able to function in a capacity. Good morning, respected judge and everyone present here. My name is Sabrina Hussain and today I am going to give a speech on if I'll become the Prime Minister of India. First of all, I will try to make India a strong and self-respecting nation. Good evening. Myself Ayushman Brahmachari and today I am presenting a speech on fake news and its effect on society. Fake news is disinformation. It is fabricated news with twisted or inaccurate facts. मेरा नाम अभिज्ञान दुबे है। मेरा टॉपिक है आज आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट। मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा सपना है साइंटिस्ट बनने का। मुझे लगता है कि मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ। मैं कोविड-19 लॉकडाउन के बारे में मुझे बोलने वाली हूँ। कोविड-19 एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। उस बीमारी की वजह से Chhatrapati Shivaji Maharaj was born on the 19th February 1630. He was born in Shivneri Vault in Junnar city in Pune district in Maharashtra. Very pleasant morning to the respected judge, host and all my dear friends. Today I Suraj is going to present a speech on the topic LPG. The new economic policy of India was launched in the year 1991 under the leadership of Good morning, respected judges and my dear friends. Today I, Arup of class 10, going to present the speech on topic nuclear energy. Nuclear energy
is also called atomic energy. It's obtained by the fission of the nucleic central element like uranium and helium. Is process given a lot of. तो मेरा टॉपिक आज है आई लव क्रिकेट। हाँ, ये सच बात है, आई लव क्रिकेट। घर पे खेलता हूँ तो मम्मी बोलती है ग्राउंड में जाकर खेलो। और ग्राउंड पर एक साथ 5-6 मैच चल रही होती है। कौन सी मैच की बॉल कहाँ पे गई किसी को पता ही नहीं चलता। अपनी मैच की बॉल छोड़ो तो गालियाँ पड़ती है, दूसरी मैच की बॉल पकड़ो तो गालियाँ पड़ती है। मैम, सर एंड एवरीवन, मेरा नाम शिव उपाध्याय है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा विषय भारत के लिए हिमालय का महत्व है। भारत के लिए हिमालय का महत्व विषय पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हिमालय क्या है इसका अर्थ प्रकट करता हूँ। छोटा सा एक प्राइज भी देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो रिजल्ट मैं अनाउंस करूँ उससे पहले एक 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे कुल मिला के 35 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से कुछ आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स भी थे। तो वो पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ पे हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। तो विनर का नाम हम एक है। जूनियर कैटेगरी में जो थर्ड प्राइज जिन्होंने जीता है वो हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने उत्तराखंड से हमें ज्वाइन किया था, और उनका नाम है शिव उपाध्याय, जिन्हें मिला है 3rd पोजीशन। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिव उपाध्याय। सेकंड प्राइज है वो है हमारी सबसे छोटी पार्टिसिपेंट जिनका नाम है आन्या पांडे। आन्या हमारे साथ मौजूद है। आन्या प्लीज आइए। तो आन्या को मिलता है सेकंड प्राइज मुझे कैटेगरी में। और फर्स्ट प्राइज मिला है हमारे में से किसी एक को। एनी गेसेस? यस, लेट मी and begin with such a beautiful speech। मतलब सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। ये जज ने मुझे कहा, जज की तरफ से ये स्पीच आया था। We are so proud to give you this award because you are outstanding। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया उन लोगों के हम सब हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सब लोगों को हम एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो के तौर पे एक मेडल प्रोवाइड करेंगे। और
so thank you so much and बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, इतने अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि उसी के रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, वो आपको पता है। और जो फर्स्ट जो हमारा पहला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने ऑलरेडी किया था आर्मी कैंप के अंदर, तो जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो उसमें अटेंड नहीं कर पाए, आज हम लोगों ने उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पे इस छोटे से इवेंट के लिए आए हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स के साथ, और मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आएँ और अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और मेडल लेकर के जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले ईशा दीवान। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं खुशी कुमारी सिंह। तुम जीती नहीं, लेकिन तुमने जितना अच्छा बोला तुम डिजर्व करते हो। आपके लिए मेडल। थैंक यू। ओके, तो अब बारी है विनर्स अनाउंस करने की। हालांकि इसमें कोई सस्पेंस तो है नहीं, विनर्स को पहले से पता है कि कौन विनर्स हैं। ठीक है, तो हम जूनियर कैटेगरी के विनर्स को अनाउंस करेंगे। तो उसमें सेकंड और थर्ड प्राइज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब बारी है हमारे फर्स्ट विनर की, और वो है सबरीना हुसैन। सबरीना का स्पीच बहुत ही अच्छा था और किसी भी पॉइंट में इनके मार्क्स कटे नहीं, तो कंग्रेचुलेशन सबरीना। And here is your trophy, Sabrina. Thank you. Okay, and third position in senior category is Tanika Devi. Please welcome your medal. Confusion, no problem. And your, I was just checking how ईमानदार you are. Thank you. And the second prize in senior category goes to Advika Saha for a beautiful speech. Advika, आपकी स्पीच के तो क्या कहने, दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक तारीफ चल रही है। And here is the certificate. अरे मैडम प्लीज ये मत कीजिए। ओके गाइस, सो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ नहीं पाए हमारे पास बिकॉज ऑफ several reasons, but thank you so much for coming to this small event that we have organized। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी आप लोगों की तरफ से ऐसा ही पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिक आइडिया जो है इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का वो ये है कि आप सब लोग जो हैं, आप लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। स्कूल में मुझे पता है कि सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती बराबर, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस पर अपने आप को एक्सप्रेस करो। और ये सालों साल चलता रहेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप चालो ट्यूशन करी के साथ जुड़े हैं तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक ओपन कंपटीशन है और इस बार हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बाहर से भी बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगले साल भी वी लुक फॉरवर्ड कि आप लोग ज्वाइन करें और इस तरह हमारे इस इवेंट को सक्सेस बनाएं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।